السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم اور میرے معزز بزرگوں اور دوست عزیز ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے سامنے سے آہستہ آہستہ اختتام کی طرف جا رہا ہے اور ختم ہونے کے قریب قریب ہے۔ اور رمضان المبارک میں ہم لوگوں نے روزے بھی رکھا، نمازیں بھی پڑھی ہیں، اور بہت سے لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اسی مہینے کے اندر کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک سب سے اہم مسئلہ جو آتا ہے وہ ہمارے لیے بالکل ضروری کے درجے میں ہے، بغیر اس کے چارہ ہی نہیں ہے، وہ ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کا نکالنا اور غریبوں تک پہنچانا۔ اب سب سے پہلی میں بات یہ بتا دوں کہ صدقہ فطر کیوں نکالا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس امت کے اوپر یہ احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے جیسی اہم چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عنایت فرمایا، اور موقع بھی دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے کے لیے اور دیگر نیک کام کرنے کے لیے، نوافل ہیں، نماز ہیں، اور اسی میں اخیر عشرے کے اندر شب قدر ہے۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس احسان کے بدلے میں شکرانے کے طور پہ ہم یہ صدقہ فطر نکال کر کے غریبوں تک پہنچاتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انعام ہمارے اوپر کیا کہ رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا اور روزے کی اہمیت اور روزے کے بارے میں ہم کو بتایا، ہم نے اس پر عمل کیا، اور رمضان المبارک کے اندر بہت سے ہم نے نیک اعمال کیے اور کام کیے۔ اگر اس اعمال کے اندر، اس روزے کے اندر، نفل نمازیں کے اندر، فرائض کے اندر، اگر انسان ہونے کے ناطے اگر کہیں نہ کہیں کوئی کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے، اس کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے اور اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صدقہ فطر نکالو اور غریبوں کے اندر تقسیم کرو، تاکہ تمہاری جو کمی رہ گئی ہے اس صدقہ فطر کی وجہ سے ہم اس کو پورا کر دیں گے۔ اب تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا صدقہ فطر کیوں نکالا جاتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے صدقہ فطر کس کے اوپر واجب اور ضروری ہے، تو اس کا جواب یہ ہے میرے دوستو کہ صدقہ فطر ہر اس آدمی کے اوپر ضروری ہے جو اتنا زیادہ مالدار ہو، جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور ضروری بھی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یا اس کے اوپر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے، لیکن ضروری سامان سے زائد قیمتی سامان اس کے پاس موجود ہو۔ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے، اور یہ چیز سمجھنی پڑے گی۔ ایک چیز ان دونوں کے اندر فرق ہے، میں وہ بتا دوں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ان کے لیے مال کے اوپر، سونے چاندی کے اوپر اور جو بیلنس پیسے ہیں اس کے اوپر سال کا گزرنا شرط ہے، جو عربی میں حولان حول کہا جاتا ہے۔ لیکن صدقہ فطر کا جہاں تک مسئلہ ہے، صدقہ فطر پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آخر میں عید الفطر سے پہلے یعنی صبح صادق سے پہلے اگر اس کے پاس اتنا مال ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کے بقدر پیسے ہو، لیکن اس میں سب سے اہم چیز جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر اگر پیسے ہو تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کا وقت کون سا ہے، کس وقت صدقہ فطر ہمیں دینا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے میرے دوستو کہ صدقہ فطر جو ہے عید کے دن جس وقت فجر کا وقت ہوتا ہے اسی وقت یہ صدقہ فطر کا دینا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت دے دیں، یا نماز سے پہلے دے دیں، عید الفطر کی نماز سے پہلے، یا اس سے پہلے بھی آپ دے دیں گے تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن سب سے بہترین طریقہ جو میں نے سمجھا مسائل کو دیکھ کر کے،
किताबों को मुताला करने के बाद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल मकसद की तरफ कि सदक़े फित्र का असल मकसद क्या है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं, सदक़े फित्र का असल मकसद ये है कि जहां मालदार लोग अपनी ईद के दिन खुशियां मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और अपने बच्चों को पहनाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, देखो तुम्हारे ईद से पहले, तुम्हारे नए कपड़े पहनने से पहले, और तुम जो अपने बच्चों को नए कपड़े जो पहनाते हो और तुम जो खुशियां मना रहे हो, तुम इस खुशी को मनाने से पहले पहले उस गरीब का भी ख्याल रखना जिस गरीब के ऊपर तुम्हारे लिए जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये कहा ना, सदक़े फित्र को निकालो, इसकी बुनियादी वजह यह है कि जहां मालदार लोग खुशियां मनाते हैं, अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाते हैं, खुद नए कपड़े पहन करके निकलते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मालदारों, तुम अपने नए कपड़े पहनने से पहले, अपने बच्चों को पहनाने से पहले, तुम जो अपने बच्चों को नए कपड़े पहना रहे हो, उससे पहले उन गरीबों का भी ख्याल रखो, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बच्चे और तुम खुशियां मनाओ और गरीब के बच्चा बेचारा देखता रह जाए, उनको अफसोस हो। इसलिए सदक़े फित्र निकालना ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, मेरे हिसाब से सबसे बेहतर यह है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे के अंदर सदक़े फित्र को निकाल दिया जाए। क्यों कह रहा हूं? ताकि अगर वो जो गरीब को हम जिसके पास पैसे दे रहे हैं या अनाज दे रहे हैं, अगर वो कोई और सामान खरीदना चाहे, मिसाल के तौर पे कपड़े खरीदना चाहता हो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो अगर आप ईद के दिन देंगे, ईद के नमाज से पहले देंगे या एक दिन पहले देंगे, तो आप ये बताइए तो सही कि वो आदमी उस वक्त अपने बच्चों के लिए और अपने लिए कपड़ा कहाँ से खरीद सकता है। अगर 6 दिन पहले, 7 दिन पहले, 5 दिन पहले अगर हम निकाल के देते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अगर वो चाहे तो अपने बच्चों को और अपने लिए कपड़े खरीद के ला सकता है, ताकि ईद के दिन वो भी मालदारों के साथ खुशियां मना सके। दूसरी बात ये कि सदक़े फित्र किसकी तरफ से देना वाजिब और ज़रूरी है। तो याद रखिएगा कि सदक़े फित्र जो है हर आदमी को अपनी तरफ से देना ज़रूरी है। अगर घर का जिम्मेदार मर्द है, वो अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से सदक़े फित्र निकालेगा। बालिग की तरफ से, अपनी औरत की तरफ से अगर वो सदक़े फित्र उनको बता करके अगर निकाल देता है, तो ये भी अच्छा है, बेहतर भी है। यानी बालिग की तरफ से भी निकाल सकता है, लेकिन उसके ऊपर जरूरी नहीं है। नाबालिग बच्चों की तरफ से बाप के ऊपर जरूरी है। तो ये हो गया सदक़े फित्र किसकी तरफ से निकाल सकते हैं। अब तीसरी बात ये रही कि सदक़े फित्र की मिक़दार क्या है, कितना निकालना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, आप ये सुन ले, सदक़े फित्र की मिक़दार जो है, अगर सबसे पहले गेहूं के हिसाब से लेते हैं तो 1.25 सेर गेहूं एहतियातन, थोड़ा सा कम है, बाद में थोड़ा ज्यादा कहा है, लेकिन 1.25 सेर गेहूं अगर कहेंगे तो ये एहतियातन जमहूर उलमा के नजदीक बेहतर है, न कमी है न बेशी है। 1.25 सेर गेहूं या उसकी कीमत। और अगर खजूर और किशमिश की तरफ से निकालते हैं तो 3.5 किलो, यानी 3 किलो 500 ग्राम, या चाहे खजूर हो या किशमिश हो। और अगर जौ के हिसाब से निकालते हैं तो ठीक गेहूं के डबल, यानी 1.25 सेर गेहूं, मतलब ये निकला कि 1.25 और 1.25 जब मिलाएंगे तो 3.5 किलो जौ, इसका हिसाब निकाल करके देंगे। एक बारीकी चीज मैं बता दूं, अक्सर हमारे उलमा भी और अक्सर जो रमज़ानुल मुबारक के जो इश्तिहार छापे जाते हैं उसमें भी ये लिखा जाता है, सिर्फ गेहूं 1.25 सेर गेहूं का मिकदार लिख करके वहां पे खामोश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। सही ये है कि जो हर तरह के आदमी है, एकदम मालदार, मीडियम दर्जे के, फिर थोड़ा उससे कम, जिनके ऊपर सदक़े फित्र अगर वाजिब हो रहा है, गौर कीजिएगा 3 कैटेगरी, तो सबसे बेहतर यह है कि जो थोड़ा उसमें गरीब हो, जिनके ऊपर सदक़े फित्र वाजिब है, वो गेहूं से निकाल दें। और जो इससे ज्यादा थोड़े मालदार हैं, यानी मीडियम क्लास के हैं, तो उनके लिए यह है कि वो
जौ के हिसाब से निकाल दें, जौ के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा करके। और जो ज़्यादा मालदार लोग हैं उनसे मेरी दरख्वास्त ये है कि वो जौ के हिसाब से, गेहूं के हिसाब से न निकालें। इसलिए फिर वो फर्क कैसे रहेगा, कैसे पता चलेगा? मालदार लोग भी गेहूं के हिसाब से निकाले, गरीब है वो भी गेहूं के हिसाब से निकाले, तो ये मुनासिब नहीं होगा और उस मालदार को एहसास भी नहीं होगा। अब मैं अपने इलाके के हिसाब से मैं बता रहा हूँ सदक़े फित्र, यानी इंडिया में भी शहरों के हिसाब से नहीं, मैं देहात के हिसाब से बताता हूँ। एक चीज़ आप लोग जहन में रख लेंगे, गौर से सुन लेंगे, असल में इसके पैसे के हिसाब से नहीं बताया जा सकता है, इसलिए कि जिस इलाके में जो गेहूं, जौ और खजूर और किशमिश की जो रेट होंगे उसके हिसाब से फ़र्क हो जाएगा। शहरों के अंदर कुछ और होता है, बम्बई के अंदर कुछ और होगा, बड़े शहरों के अंदर कुछ और रेट होते हैं, छोटे शहरों के अंदर कुछ और होगा, देहात के अंदर कुछ और होगा। मैं अपने इलाके के एतबार से बताता हूँ। गेहूं के हिसाब से अगर रेट लगाया जाए तो 35 या 36 रुपये होंगी। आटा के हिसाब से अगर रेट लगाया जाए तो 43 यानी 40 से लेकर के 43 रुपये होंगे। जौ के हिसाब से अगर लगाया जाए रेट सदक़े फित्र का तो 100 रुपये से लेकर के 105 रुपये तक होंगे। छुहाड़े के अगर हिसाब से लगाया जाए तो 650 रुपये से लेकर के 654 रुपये तक होंगे। अगर खजूर के हिसाब से लगाया जाए तो 390 रुपया से लेकर के 392 रुपया तक होंगे। और अगर लास्ट में किशमिश के हिसाब से अगर लगाया जाए तो 970 रुपये से लेकर के 980 रुपये होंगे। अब एक मसला और बताता हूँ, क्या सदक़े फित्र जो है एक से ज़ायद मिस्कीनों को, गरीबों को दिया जा सकता है या नहीं? तो याद रखिएगा, सदक़े फित्र जो है एक या एक से ज़ायद मिस्कीनों और मुहताजों को दिया जा सकता है और एक आदमी को भी दिया जा सकता है, बशर्ते कि वो निसाब के मिक़दार के बराबर ना हो जाए। अब एक चीज़ और आखिर में, सदक़े फित्र के मसारिफ कौन लोग हैं? सदक़े फित्र किनको किनको दिया जा सकता है? तो जिन जिन लोगों को ज़कात दिया जा सकता है उन लोगों को सदक़े फित्र भी दिया जा सकता है। वल्लाहु आलम।